جی آپ دیکھ سکتے ہیں وزیر اعلیٰ سہیل افریدی جو ہے وہ باہر آ چکے ہیں. یہ منظر آپ دیکھ سکتے ہیں جی. یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں وزیر اعلیٰ سہیل افریدی جو ہے وہ اب باہر آ چکے ہیں. وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کا جو ہے وہ رستہ روکا جا رہا ہے. شفیع جان کو گرفتار کیا گیا اور وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اب آ چکے ہیں اور آگے اسلام آباد پولیس جو ہے ان کا رستہ روک رہی ہے. یہ اس ٹائم اسلام آباد کی صورتحال بن چکی ہے. یہ دیکھیں جی یہ شفیع جان کی یہ حالت ہے. یہ شفیع جان کے یہ پھٹے ہوئے کپڑے آپ دیکھیں جی. یہ شفیع جان کے پھٹے ہوئے کپڑے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شفیع جان ہے اور ان کی آپ یہ حالت دیکھ سکتے ہیں. یہ خیبر پختونخوا کے منسٹر شفیع جان کے ساتھ اگر آپ دیکھیں یہ ان کے اگر آپ کپڑے دیکھیں کیبنٹ ممبر کا گریوان پاٹ دیا آپ نے. وزیر اعلیٰ صاحب آپ کیا کہیں گے یہ آپ کے ایک منسٹر کے ساتھ یہ جو رویہ ہے یہ انسانیت ہے. ادھر آرام سے کھڑے ہیں اور انہوں نے جو ہے ایک پروونشل کیبنٹ ممبر کا گریوان پاٹ دیا. یار انہوں نے پولیس میں غنڈے بھرتی کیے ہوئے ہیں. یار آپ لوگوں کو یہ احساس ہے کہ پروونشل کیبنٹ کا ممبر ہے اور آپ اس کا گریوان پاٹ رہے ہیں. یہ غلط کیا. تو یہ صورتحال ہے جی اس ٹائم. یہ اس ٹائم اسلام آباد کی صورتحال ہے. صاحب شرم والی بات ہے. یہ منسٹر صاحب ہیں ہمارے آپ یہ شفیع جان صاحب آپ ذرا گردن اس طرف یہ دیکھیں جی. یہ شفیع جان صاحب یہ نشانات آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ. ان کا بیان ریکارڈ کراتے ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کرتے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک منسٹر کے ساتھ دیکھیں یہ بدماشی یہ سلوک یہ ہمارا حق ہے. ہمارے لیڈر کی جان کا مسئلہ ہے اور انہوں نے غنڈہ گردی کی. یہ غنڈہ گردی نہیں چلنے دیں گے. ہمارے لیڈر کی صحت کا مسئلہ ہے. ہم اپنی جانوں پہ کھیل کے ہم آگے جائیں گے. ہمیں پرامن لوگ ہیں. ہمیں رپورٹ چاہیے. ساتھی ڈاکٹر کو اندر بھیجے. سی ایم صاحب کھڑے ہیں. کیبنٹ کھڑی ہے. کون سا فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ بن گیا. دیکھیں جی یہ سہیل افریدی صاحب یہ رستہ بند کیا گیا. آپ کے لیے بھی رستہ یہ بند ہے. آپ کو بھی آگے نہیں جانے دیا جا رہا. یہ پولیس یہ میرے سامنے کھڑی ہے. یہ پی ایم ایل نون کے ذاتی ملازم بن گئے ہیں. یہ سرکاری نوکر نہیں ہیں. میں ان سے یہ کہوں گا کہ آپ اس کے بعد جو ہے عوام کی تنخواہ عوام کے ٹیکس کے پیسے سے تنخواہ نہ لیں. آپ اس طرح جائیں ادھر جعلی وزیر اعظم شہباز شریف کے گھر سے تنخواہیں لیں. کیوں آپ ان کے ذاتی ملازم بن چکے ہیں. یہ یہاں خیبر آپ کا اسلام آباد کی پولیس ہے. یہ اسلام آباد سب کا ہے. کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. یہ ہمارے پاکستان کا دارالخلافہ ہے. یہاں پر تمام آ سکتے ہیں. کسی اور منسٹر جو کرپٹ ہیں 2 نمبر ہے 2 نمبر طریقے سے ہیں ان کو ہاتھ لگانے میں آپ کی جرت نہیں. ان کے سامنے آپ بات نہیں کر سکتے. ادھر خیبر پختونخوا کے منسٹر کا گریوان پاڑ رہے ہیں آپ لوگ. یہ انسانیت ہے.
ये सीएम है एक सूबे का, चीफ एग्जीक्यूटिव है, आप किस तरह इसको रुकवा सकते हैं? ये आप देख सकते हैं, ये इस टाइम इस्लामाबाद की ये सूरत हाल है। आगे इस्लामाबाद पुलिस मौजूद है और ऑप्शंस बहुत है, ऑप्शंस बहुत हैं। अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब ने हुक्म दिया है 16 तारीख से पहले वहाँ पर इमरान खान साहब के इलाज के लिए उन्होंने जो अहकाम दिए हैं उनका इंतज़ार कर रहे हैं। और हम चाह रहे ये हैं कि इमरान खान साहब के जो ज़ाती मालिज हैं वो वहाँ पर जाए, इमरान खान साहब का मुआयना करें और इमरान खान साहब को अल-शिफा हॉस्पिटल लेके जाएं और उनके ज़ाती मालिज और उनके ख़ानदान की निगरानी में, क्योंकि ये जिस तरह की बेईमानी कर रहे हैं ये जाली हुकूमत, और जिस तरह उन्होंने झूठ बोला था प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, तो हमें इन पर एतमाद ही नहीं है। अभी हमें एतमाद है सिर्फ अपने जो इमरान खान साहब के ज़ाती मुआलिज हैं और उनके ख़ानदान पर। तो जब तक वो नहीं जाएंगे और आवाम को एतमाद नहीं दिलाएंगे तो तब तक जो है हमारा रवैया सख्त होता जाएगा इंशाअल्लाह ताला। हाइट कम नहीं जी आप देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन यहाँ पर मौजूद हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने रास्ता बंद किया हुआ है। ये पार्लियामेंटेरियन हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं क्या समझते हैं जी, रास्ता मुकम्मल तौर पे बंद है, इमरान खान की आंख का मसला है और जो रिपोर्ट आई वो भी आपने पढ़ी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखें हसनैन, सबसे पहले तो ये कोई मामूली बात नहीं है। इमरान खान साहब यहाँ पे लोगों के दिलों में धड़कन की तरह धड़कते हैं और ये सबसे बड़ा और सबसे मेजर इशू है हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट इमरान खान की सेहत के अलावा कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए ऊपर तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो ही नहीं सकता, कोई सोचे भी ना। चाहे ये जितने मर्जी आप देखें, इन्होंने हमारे तमाम पार्लियामेंटेरियंस को उधर पार्लियामेंट लॉजेस में किसी को लॉक किया हुआ है, बाकी कुछ हमारे इधर लॉकड हैं। और इधर इन्होंने जिस तरह यहाँ पे एक पूरा मुझे नहीं समझ आता, इन्होंने जिस तरह हेडक्वार्टर पूरी पुलिस इधर आई हुई और सिर्फ हमें एक पुरअमन प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ना हमारे हाथ में कुछ है, ना हमारे हाथ में पत्थर है, ना हमारे कुछ है। सो ये सारे जितने भी आप देख रहे हैं सारे पार्लियामेंटेरियंस और लॉयर्स यहाँ पे खड़े हैं, पढ़ी लिखी सोसाइटी यहाँ पे खड़ी है और उनका सिर्फ एक मकसद है कि इमरान खान को जो कि तो अगर आगे नहीं जाने दिया जाता या ज़ाती मालिज या जो खान साहब के जो बाकी जो इंडिपेंडेंट डॉक्टर्स की टीम उन्हें सेस नहीं दी जाती, तो क्या समझते हैं फिर क्या प्लान हो गया, क्या करेंगे आप? देखिए मैंने आपको जिस तरह बताया ना कि इससे इमरान खान की सेहत के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारे लिए वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है। तो हमें जब तक ये कितने दिन तक हमें रखेंगे, जितनी देर तक रखेंगे, जिस तरह पार्टी ने डिसाइड किया हुआ है कि जब तक वो इमरान खान साहब की सेहत के बारे में फाइनल डिसीजन ये नहीं करते, उनको हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं करते, उस वक्त तक इंशाल्लाह हम यहाँ पे खड़े रहेंगे। ठीक है, इफ्तार जान साहब आप क्या कहना चाहेंगे? ये तमाम सूरत हाल आपके सामने है और आप लोगों को तो यहाँ तक ही महसूर कर दिया गया है, आप लोगों ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर पहुँचना था, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि हम खान साहब के सेहत के हवाले से जो तशवीशनाक बातें निकली है, तो उसके बारे में इधर एक पुरअमन एहतजाज हमारे पार्टी ने जो है ना ऐलान किया है। लेकिन इधर हम ये होने नहीं देंगे कि जो आइन ने इख्तियार दिया है, आइन ने इंसानी हुकूक की पामाली को हम इस तरह नहीं करेंगे, हम नहीं होने देंगे इसको इस तरह पामाल करने। इंशाअल्लाह ताला जो पार्टी के जिस तरह पार्टी ने ऐलान किया है, हम तब तक इधर रहेंगे जब तक खान साहब को या हस्पताल शिफ्ट ना किया हो या उसके पर्सनल जो शौकत खानम के डॉक्टर्स है उसको उधर तक रसाई ना हो। ठीक है, अफरीदी साहब आप क्या कहेंगे? ये तमाम सूरत हाल भी आपके सामने है और खान साहब की आंख का मसला जो रिपोर्ट है वो भी आपने पढ़ी होगी यकीनन, क्या कहेंगे आप? ये आज सारे पार्लियामेंटेरियंस पहुंच चुके हैं और अगर आप देख ले तो पूरे इस्लामाबाद को इन लोगों ने बंद किया है और मारगला रोड पर हमारे 5 MPAs को गिरफ्तार किया है और बाकी MPAs कुछ MNAs को पार्लियामेंट लॉजेस में मैसूर किया है। खान साहब की सेहत के हवाले से सारे पार्लियामेंटेरियन इधर मौजूद हैं और पार्टी की हिदायत के मुताबिक हमने पार्लियामेंट के सामने ही धरना देना है। खान साहब की सेहत हमारे लिए रेड लाइन है क्योंकि हम खान साहब की सेहत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। तो इस हवाले से हम बिल्कुल आखिरी हद तक तैयार हैं और आखिरी हद तक जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। सो इस टाइम जो है वो एहतजाज जारी है, जो बाकी सूरत हाल होगी वो भी आपको बताएंगे। क्या कहना चाहेंगे? ये तमाम सूरत हाल आपके सामने है, क्या मज़ीद कोई ऐलान हो सकता है?
देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि अब क़यादत को इस बात पे संजीदगी से सोचना चाहिए कि अब इन छोटे मोटे एहतजाजों से और ये स्ट्रीट मूवमेंटों से और इन चीज़ों से हमें निकल के एक बड़ा एहतजाज करना होगा। और ये मेरे ख़्याल में आखिरी एहतजाज होगा जिसमें जो वर्कर हमारे ऊपर जो प्रेशर है हमारे हल्कों के ऊपर वर्कर्स का, जिस तरह आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर एक तोहफा बरफा है खान साहब की सेहत के हालात को देखकर, तो हम समझ रहे हैं कि इस वक्त जो नरमी हम बरत रहे हैं या जो इक़दाम उठा रही है नाकाफ़ी है। हमें सख्त इक़दाम उठाने होंगे और हमें लॉन्ग मार्च करना। बहुत शुक्रिया जी, आपको अपडेट देते रहेंगे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।